میرے ساتھ آپ نکالیں کلام خدا کو کھولیں، زبور نمبر 145 اس کی 18ویں آیت کو کوئی بھی پڑھ سکتا بیٹا بیٹا، کسی نے نکال لیا تو ٹھیک پڑھ۔ زبور 145 اس کی 18 آیت۔ جی خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ پاسٹر آستر سسٹر جی شکریہ آپ کا، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی صاحب میں پچھلے ویڈنسڈے کو یہ بات کر رہا تھا کہ شفایت کرنے والے جو رخنا بن جاتے، جو دوار کے اندر چنے جاتے، اپنے آپ کو دوار کے اندر کسی کے لیے چن دینا، رخنا بن جانا، سیسا پلائی دوار بن جانا، تو خدا کے آگے ابراہم لوط اور سدوم و عمورہ کے لیے بنا، تو اس وجہ سے اس رزلٹ کو بھی دیکھا۔ ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری شفایت کیا کر سکتی، ہم شفایت کرنے والے، ہمارا خداوند وہ سردار کاہن ہے۔ کاہن اور نبی میں فرق ہوتا ہے کہ نبی خدا سے لیتا اور کلیسیا کو ڈلیور کرتا، اور کاہن کلیسیا سے لے کر باپ کے حضور اس کی درخواستیں، کلیسیا کی مناجاتوں کو رکھتا ہے، یعنی کلیسیا سے لے کر خدا کو دینا، باپ کو دینا۔ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو کاہن ہے ہمارا یسوع سردار کاہن، جو آسمان پر خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا، اور زمین پر آ کر بھی اس نے یہی کام کہانت کا کرنا ہے، وہ سردار کاہن۔ تو ہم سب کیا ہے؟ کاہن۔ تو ہم سب جب زمین پر خداوند آئیں گے تو ہم سب اس کے ساتھ بھی کاہن کا کام کریں، ہم سب کاہن۔ اگر اب ہم تیار نہیں ہوئے کاہن کے لیے، اگر ہمارے پاس یہ توڑا نعمت، یا خداوند نے ہمیں چنا، مہر کی پاک روح کی، اس نے ہمیں کاہن بنا دیا، لکھا اس نے ہمیں کاہن بھی بنا دیا اور بادشاہی بھی دے دی، دونوں چیزیں دی ہے۔ تو آپ سب کاہن ہیں، آپ سب کیا، جتنے بھی خدا کے بیٹے بیٹیاں اس کے گواہ بھی ہیں اور کاہن بھی ہیں، شفایت کرنے والے۔ خدا ڈھونڈتا ہے ایسے لوگوں کو، تلاش کرتا ہے، کرتا ہے، گناہ گاروں کو تلاش کرتا۔ پھر دوسرا پوائنٹ میں نے بتایا تھا، خدا شفایت کرنے والوں کو ڈھونڈتا۔ تیسرا پوائنٹ تھا، خدا سچے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرتے۔ میں یہ بتا رہا تھا، تب تک کوئی پرستش کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو جائے، وہ بیٹا بیٹی نہ بن جائے، وہ نئی مخلوق نہ بن جائے، وہ سچائی سے پرستش نہیں کر سکتا، وہ روح سچائی سے پرستش نہیں کر سکتا، وہ باپ کی اور بیٹے کی اور بیٹی کی جو صحبت ہوتی اس میں نہیں رہ سکتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہماری صحبت میں رہنا چاہتا ہے۔ خدا کی خوشنودی یہی ہے کہ وہ انسان کی صحبت میں رہے۔ جب اس کے بیٹے بیٹیاں ہم بن جاتے ہیں تو خدا کی رسپانسبلٹی ہوتی، وہ ہمارے لیے ہر چیز پرووائڈ کرتا، وہ ہمارا باپ ہے۔ تو اس نے ہمیں کاہن بھی بنا دیا اور اس نے ہمیں بادشاہی بھی دے دی۔ تو شفایت کرنے والے بننا، میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم نے کیا کرنا، شفایت کرنے والے۔ خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا، خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا، خدا ایسے لوگوں کو عزیز رکھتا ہے۔ بیٹا ہونا فرق بات ہے خدا کا، بیٹی خدا کی ہونا فرق بات، شوہر ہونا فرق بات ہے، اور اچھا شوہر، عزیز بیوی، بیوی ہونا فرق بات، عزیز بیوی ہو، پیاری بیوی ہو، یا پیارا بیٹا پیاری بیٹی ہو، یہ فرق بات ہوتی۔ تو ہم نے خدا کے اگر عزیز بیٹے بننا، بیٹے ہی نہیں رہنا، خدا کے عزیز بیٹے بننا، تو خدا ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ایسے بچوں کو پسند کرتا جو شفایت کرنے والے ہیں۔ نیند نہ آئے ان کو، چین نہ آئے، اٹھ کر گھٹنے ٹیکیں، لوگ سو رہے ہو تو وہ گھٹنوں کے بل دعا کر رہے ہیں۔ اب میں جو ریفرنس آپ کے ساتھ سامنے بیٹی استر نے پڑھا، ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ خدا ان سب کے قریب ہے، خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، یعنی آگے لفظ لکھا، یعنی جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ آپ دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے، دعا آسمان کی کنجی ہے، دعا آسمان کی چابی ہے۔ خدا خود بھی سدوم اور عمورہ کو بچا سکتا، خود بھی لوط کی فیملی کو بچا سکتا تھا، لیکن
खुदा चाहता था कोई रखना के अंदर खड़ा हो जाए, कोई शिफायत करे, कोई घुटने टेक ले, कोई मेरे आगे फरियाद कर ले। मैं उस दिन जो रेफरेंस आपको दे रहा था, रात के पहरों को उठकर अपने बच्चों के लिए शिफायत कर जो भूख से बिलक रहे। भाई साहब, मैं ये बात कर रहा था कि जो सच्चाई से दुआ करते हैं, सच्चाई से दुआ कैसे होती है? प्रस्तश करते हैं, जो नए सिरे से पैदा हो जाते, जो उसके बेटे बेटियां बन जाते, जो खुदा की रूह के साथ एक रूह हो जाते, खुदा की सोहबत में होकर। मैं लफ्ज आपको यही सिखाता हूं कि रफाकत खुदा से रखना। जैसे हम सब मीटिंग में इकट्ठे हुए हैं, हम रफाकत एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ रफाकत, वो हमारे बीच में है। ये हमारी रफाकत है, आपस के भी मेल मिलाप रफाकत, जब इबादत में इकट्ठे हुए, और खुदा हमारे बीच में है, हमारे दरमियान में है। खुदा के साथ हम सब मिलकर अब रफाकत में है। रफाकत में होना और सोहबत में खुदा की होना, ये जमीन आसमान का फर्क। यही मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे बेटे बेटियों, बहनों और भाइयों। सच्चाई से दुआ करते जो खुदा की सोहबत में रहकर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। देखना, ये 3 महीने आप करके देखें, मैं आपको गारंटी देता हूं कहां के कहां होंगे हम। लोग आराम कर रहे हो, आप काम कर रहे हैं। लोग सो रहे हो, आप दुआ कर रहे हैं। ये 2 बातें ज़हन में रख लें। 3 महीने, ज्यादा नहीं। देखना आसमान की बुलंदियों तक कैसे खुदा लेके जाता। सच्चाई से दुआ करने का मतलब ये नहीं हमारा दिल कितना पाप। दाऊद कहता, अगर मेरे दिल में बदी होती तो खुदा मेरी ना सुनता। तुम अपने कपड़ों को नहीं, अपने दिलों को चाक करके मेरे हुजूर मतवज्जो हो। ये बात वहीं की वहीं है, अब नहीं है। हम उस बात को अपने ज़हन में ना रखें, हमें इससे आगे जाना है। हम क्राइस्ट के हो चुके हैं, हम मसीह के हो चुके, हम उसके खून खरीदे हैं, हम उसके फजल के तहत हैं, और फिर हम फजल से महरूम होना चाहते हैं, पीछे जाना चाहते हैं? नहीं। जो यीशु को फॉलो कर लेते, जिनके अंदर यीशु की लो लग जाती, पीछे नहीं मुड़ के देखते। कितना मैं दिल को पाक कर सकता हूं भाई साहब, इंसान हूं ना। आप कितना पाक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये उसके फजल से हो सकता है। अपने कपड़ों को नहीं, दिलों को चाक कर लो। चाक का मतलब होता कि जो बहन भाई अपना टीचिंग करते हैं उनको पता है, एक चाक स्लेटी की तरह गोल चाक होता है, उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर करें, गोल गोल घुमाए, उतनी जगह बिल्कुल व्हाइट और पाक हो जाएगी। व्हाइट पाक हो जाएगी, तो फिर जब व्हाइट और पाक हो जाएगी, उस पर कोई दाग झुर्री धब्बा नहीं होता, वो जगह पाक हो जाती है। इस तरह खुदा कह रहा तुम अपने कपड़ों को, दिल को चाक करो, पाक करो। कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। खुदा ने शरीयत क्यों दी थी? कि इंसान रोए, कर लाए, घुटने टेक ले कि हमसे ये नहीं होता। 613 हुक्म, 12 हुक्म वो, 10 हुक्म वो, और 613 और जो हदायत थी वो बनी इसराइल के ऊपर, खुदा की कौम के ऊपर लाद दी, जो कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, कोई पूरा ही नहीं कर सकता। फिर इंसान खुदा के हुजूर रोया, घुटने टेक लिए, ये हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं बच सकते, ये एक बोझ है, ये एक जुआ है। और यीशु ने कहा था, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको आराम दे दूं। मेरे जुए में अपनी गर्दन दे दो। जब अपनी गर्दन हम यीशु के जुए में दे देते हैं जो मुलायम, तो मसला ये होता है हम जुए में गर्दन दिए जाते, चलते चलते झट से अपनी गर्दन जुए से निकाल लेते हैं, और फिर पुराने जुए में, शरीयत के अंदर, और उसी फजल से महरूम हो जाते, फिर पुरानी बातों के अंदर, फिर पुरानी जिंदगी के अंदर। नहीं, अब मैं सिर्फ ये पता, सच्चाई से दुआ कर, खुदा की सोहबत में रहकर दुआ कर, अपने दिल को पाक पाक वो करेगा, और उसने कर दिया है, अपने लहू से कर दिया। मैं कैसे अपने किसी अच्छे माल से और दुआ से, है ना, पाक कर लो? ये मुश्किल था, लेकिन खुदा के फजल से और उसके लहू से ये मुमकिन हुआ कि मैं और आप पाक किए गए।
हमारे दिल। अब हमें जरूरत है कि अच्छे बेटे बेटियां बनकर उसकी सोहबत में रहकर हम उसके हुजूर घुटने टेक लें और जो लफ्ज लिखा यानी जो सच्चाई से दुआ करते खुदा उनके करीब है, खुदा उनके करीब। अब हुआ क्या, हिजकिय्याह नबी को ये मसला दरपेश हुआ। हिजकिय्याह नबी को एक लेटर भेजा जो बादशाह के ऊपर चढ़ाई कर रहा था, फौज लेकर चारों तरफ जब उसने चढ़ाई कर दी थी, एक लेटर भेजा। उसने कहा कि इस आप गलत फहमी में न रहना कि खुदा आपका साथ देगा, खुदा आपका साथ देगा। हम आपको गुलाम बना लेंगे, हम आपके माल मवेशियों को, बच्चों को हम गुलाम बनाकर ले जाएंगे और यरूशलेम को हम बर्बाद कर देंगे। और खुदा के लिए जो तहजीक अल्फाज उस दुश्मन ने, बादशाह ने लेटर के ऊपर लिख कर भेजे थे, हिजकिय्याह बड़ा रोया, परेशान हुआ। हिजकिय्याह ने एक काम किया, वही लेटर, वही नामा खुदा के हुजूर ऐसे फैला दिया। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, खुदा के हुजूर फैला दिया। क्या किया, उसने घुटने टेक लिए हिजकिय्याह ने। वो लेटर, वो नामा, वही जो दुश्मन ने दिया था, हम आपको ऐसे कर देंगे ऐसे, वो उसने फैला दिया और घुटने टेक लिए और खुदावंद से कहने लगा, अब तू इस नामा को खुद ही पढ़ ले, क्या लिखा है। अब मैं इस सारे दरखास्तों को, सारे लेटर को, सारे नामों को मैं आपके सामने रख देता हूं, तो सुनता, बोलता और देखता है, हर जगह मौजूद होता। खुदा उनके करीब है जो उससे दुआ करते। इसके घुटनों के बल हो गया और वो लेटर सामने फैला दिया। तो क्या हुआ आपको पता, 85,000 फौज एक ही रात में एक फरिश्ते ने उनकी खत्म कर दी, खत्म कर दी। मैं कहता हूं आपकी दुआ की आखिरी लाइन भी खत्म नहीं होगी, आपकी दुआ सुनी जाए। अगर आप शिफायत करने वाले हैं मेरे बहनों और भाइयों, आप उस मजबा से जहां दुआ कर रहे उठेंगे भी नहीं, आपका काम होगा। आप किसी के लिए शिफायत कर रहे गुनाहगार के लिए, वो जुए और बंधन टूट जाएंगे और वो सलीब के पास आ जाएंगे। खुदा ऐसे सोर्स मुहैया कर दे, कोई हो शिफायत करने हो। उस कौम को खुदा ने बचाया हिजकिय्याह के जरिए से, और दुश्मन की फौज को 85,000 लोगों को एक फरिश्ते ने एक ही रात में, सुबह उठे तो वो तो हैरान थे हिजकिय्याह और उसकी कौम। वो कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि जो सच्चाई से दुआ करते खुदा उनके करीब है, जो शिफायत करते हैं खुदा उनके करीब। मत्ती रसूल के इंजील में 6 बाब में जो लफ्ज लिखा, जब तू दुआ करे तो अपने कमरे को या कोठरी को बंद कर और दुआ कर, तेरा बाप जो पोशीदगी में देख रहा। पोशीदगी का मतलब होता छुपा हुआ, पोशीदगी में देख रहा। अगला लफ्ज है पोशीदगी में देख रहा, यानी है आपके करीब, है छुपा हुआ, आपको नजर नहीं आता, वो आपको देख रहा है। मेरी बेटी सलीमा, मेरी बेटी आस्तर, मेरा बेटा पास्टर तरसीम, ये कैसे मेरे हुजूर दुआ कर रहे। वो हिजकिय्याह को भी इसी तरह देख रहा था, ये कैसे इसने मेरे हुजूर आकर उस नामा को, उस रिक्वेस्टों के लेटर को, उस पेपर को मेरे आगे फैला दिया है। तो खुदा देख रहा था। हम भी जब दुआ करते अपनी कोठरी में, अपने कमरे में, अपनी जगह पर दुआ कर रहे होते, तो जो भी रिक्वेस्ट हैं, दरख्वास्तें, शफायत, मुनाजातें हम अपने आगे रखकर खुदा के हुजूर रख देते हैं, फैला देते हैं। जिस तरह खुदा की बंदी हन्ना ने अपना दिल खुलकर अपने खुदावंद के आगे रख दिया, तो उसकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी तो उसकी मुराद पूरी हो चुकी। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर हम सच्चाई से, सच्चे दिल से दुआ करते, खुदा हमारे करीब। अगर हम अपने घर में, कोठरी में दुआ कर रहे हैं, तो खुदा हमारे करीब, हमारे कमरे में। वो आपके सामने हो सकता, आपके इस साइड पे हो सकता, आपके इस साइड पे हो सकता, आप घुटनों के बल, आप सिजदे में, लेकिन वो आपको देख रहा है। मेरी बेटी कैसे प्रे कर रही, कैसे दुआ कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने जब 3 बार पहाड़ पर दुआ की, चौथी बार क्यों नहीं की?
आसमान से लिखा, तीसरी बार जब यीशु ने दुआ की, शागिर्दों को जाकर उठाता, उठो भाई, क्यों सो रहे हो यार, मेरी जान गमगीन है, गम में हूं, परेशान हूं, क्यों नहीं आप उठे, मेरे साथ दुआ करें यार। नहीं की उन्होंने। अब 3 बार दुआ जब की थी तो लिखा चौथी बार इसलिए नहीं की, आसमान से फरिश्ता आकर क्राइस्ट को, यीशु को तकवीयत देने लगा। क्या करने लगा? आपकी दुआ पता क्या करती? आपकी दुआ आसमान के फरिश्तों को ऑपरेट करती है। चौथी दफा आसमान से फरिश्ता आकर क्राइस्ट की दुआ सुनी गई, यीशु की दुआ सुनी गई। सुनी इसलिए गई, फिर बाप ने अपना चेहरा छुपाया, बाप खामोश रहा, और फिर क्राइस्ट की प्रे से, दुआ से जो फरिश्ते आसमान से थे ऑपरेट हुए, और बाप ने एक फरिश्ते को भेजा। लिखा फरिश्ता यीशु को तकवीयत देने लगा, कुव्वत देने लगा। उसका क्या मतलब था? क्यों तकवीयत दे रहा था? अब तकवीयत इसलिए दे रहा था कि जब उसी टाइम जब लिखा फरिश्ता आकर उसको तकवीयत देता, उसी टाइम तलवारें और लाठियां लेकर वो अपना सरदार काहन और प्यादे उसको पकड़ने के लिए आ गए। तो अब पता क्या यीशु ने कहा? तकवीयत क्या करती, प्रे क्या करती, जो आप खुदा की मर्जी। उसने अपने दोनों हाथ ऐसे दे दिए, कह रहा मुझे पकड़ लो। शागिर्दों को कहता अब सोए रहे, मुझे लो, पकड़ लो, मैं हूं यीशु। किसे ढूंढते हो? किसे ढूंढते हो? ये है पावर, ये है ताकत। फरिश्ते ऑपरेट होते, और फरिश्ते ने खुदावंद को तकवीयत दी, और फिर यीशु मसीह ने अपने आप को हलीमी से रज़ाकाराना तौर पर सरेंडर किया कि मैं यीशु मसीह, मैं ही यीशु हूं, मैं ही खुदावंद जिसे आप ढूंढते हैं, आप मुझे पकड़ लो। इसका रीजन और भी था, भी मेरे शागिर्दों को ना कुछ कहना, मुझे पकड़ लो, मैं यीशु। इसके और भी पहलू हैं। अब हम इस तरफ चलते कि जो शिफायत करने वाले, दुआ करने वाले लोग हैं। अच्छा, ये आप इस बात को ये 7 मिनट हो गए भाई साहब, थैंक यू सो मच। खुदावंद आप सबों को बहुत बरकत दे। मैं आपको बहनों, बेटे, बेटियों यही समझाना चाहता हूं, प्लीज लोग सोए हों तो हम दुआ में हों, लोग आराम कर रहे हों तो हम काम कर रहे हैं। 3 महीने आपके पास, मैं गारंटी देता हूं आसमान की बुलंदियों तक तरक्की करेंगे। वो आपको आज सुबह बहाल करने को आए, सरफराज करने को आया। जुए और बंधन टूट जाएंगे। जो हम काम समझते नामुमकिन काम, उसके हुजूर घुटने टेकने से हर एक मुश्किल का हल निकल आता है। कोई ऐसा काम नहीं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं, कोई ऐसी बीमारी नहीं, कोई ऐसा बोझ नहीं, कोई ऐसा कर्ज नहीं, कोई ऐसी बेरोजगारी नहीं, कोई ऐसा नामुमकिन काम नहीं कि लोग नशे में, गुनाह में हम घुटने टेके ना हो। हर काम होता, सब कुछ होता, और कोई काम नामुमकिन नहीं है जब हम उसके हुजूर घुटने टेक लेते हैं, उसके हुजूर आ जाते हैं, उसके कदमों में गिर जाते हैं। आपने देखा होगा कोड़ी भी लिखा, वो कदमों में आकर गिर गया और मिन्नत करने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता। यानी उस कोड़ी का जो पहले उसने कोशिश की थी ना, कोई उसको ठीक नहीं कर सका। कह रहा मेरा इतना ईमान ही नहीं, मैं कैसे पाक साफ हो सकता हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझसे तो नफरत करते, मुझे तो काहन भी कोई मुंह नहीं लगाता, मुझे तो हैकल में भी जाने नहीं देते, मैं कहां जाऊं, तू कर सकता है। और यीशु ने कहा चल मैं तुझे कर देता हूं, तू चाहता है तो मैं कर देता हूं। अब जो कोई यीशु के पास आकर गिर जाता, मुमकिन नहीं है वो वैसा रहे, बदल के जाता है, सेम नहीं रहता, बिल्कुल बदल जाता। तो हमने क्या करना है? ढूंढना लोगों को, खुदा गुनाहगारों को ढूंढता है। नाम लिखे, प्रे करें, दुआ करें। कोई जानता है या नहीं जानता, बेरोजगारों के लिए, नशे के अंदर है, या लोग गुनाह में है, लोग बुरी सोहबत में है, लोग बीमारी में है, लोग गुर्बत में है, लोग खौफ के अंदर है, मियां बीवी के अंदर झगड़े हैं, या कोई हमारी कलीसिया के मसाइल है। हमें सोना नहीं है, सोना नहीं। लोग सो रहे हो, हम दुआ कर रहे हैं, रिजल्ट दूर नहीं है, खुदा उनके करीब है। करीब का मतलब होता, भाई साहब ऐसे मेरे पास बैठे हो, हल्का सा भी कान में बोलेगा, पास्टर सैमसन साहब
ये मसला यार हल करना, तो ऐसे हो जाएगा। क्यों? मेरे को हल्का सा ही बोल दें, खुदा हम सबके करीब है। आप आस्तगी से बोलेंगे बाप ये मेरा मसीह, वो आपका हल हो। खुदा हम सबके करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी सच्चाई से दुआ करना, सच्चे दिल से दुआ करना। तो जब हम सच्चे दिल से सच्चाई से दुआ करते हैं, उसकी सोहबत में, उसकी रूह के साथ हमारी रूह एक हो जाती है, दुआ करते हैं, तो मेरे बहन और भाइयों जुए और बंधन टूटते हैं। तो दुआ आसमान की कुंजी है, दुआ आसमान की चाबी है। तो जब हम दुआ नहीं करते तो फिर आसमान नहीं खुलता, फरिश्ते ऑपरेट नहीं होते। आपकी दुआ से फरिश्ते ऑपरेट होते, आपके दुआ से आसमान का हर एक अच्छा खजाना खुलता। आप यहाँ बैठकर दुआ करोगे, अमेरिका के अंदर आपके लिए काम होगा। एक बहन ने, ये काफी पुरानी बात, बहन ने ईमेल किया मुझे अमेरिका से, कहती ब्रदर दुआ करना, मैंने चेकअप कराया डॉक्टरों से, मेरे दिमाग के अंदर कैंसर का एक डॉट सा डॉक्टरों ने बताया, तो प्लीज आप दुआ करना। मैंने मेल के अंदर ही लिख दिया जो आप भी दुआ अब मैंने आपके लिए की है, आप ठीक हो रहे। दूसरे दिन जब मैं दुआ कर रहा तो ऐसे लगा मेरे आंखों के सामने से एक तीर गया उस बहन के डॉट पर, दिमाग पर जाकर, जहाँ कैंसर था उसको खत्म कर दिया, उसको खत्म कर। दूसरे दिन उसकी मेल आ गई, ब्रदर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने दोबारा टेस्ट कराया, अभी कैंसर नहीं है, अब डॉट सा जो मेरे ब्रेन के अंदर था वो जाता रहा। आप यहाँ बैठ के अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, मलेशिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर, आप यहाँ बैठ के इब्लीस के अड्डों को, इब्लीस के कामों को तबाह कर सकते हैं और यीशु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। Yeah.